Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today this is our 23rd lecture overall and second lecture of chapter number 1. The name of the chapter is quadratic equation. This is week 7, lecture number 23 and dated 6 August 2020. Yesterday in the previous lecture we have studied quadratic equation. Now what is meant by quadratic equation? The equation in which the maximum power of the variable is 2, that is called quadratic equation. And the highest power or the maximum exponent of the variable is 2, then that equation is called quadratic equation. The standard or general form of the quadratic equation is ax square plus bx plus c equal to 0, where a is not equal to 0. This condition must be imposed. As I have told you that this condition must be imposed because if a is equal to 0, then the equation become linear equation because this term will be vanish. So the equation become a linear equation. Therefore, this condition must be imposed. And as I have told you that if bx is absent or this term is not here, then the equation is called pure quadratic equation, and this is the form of pure quadratic equation. Now we have studied different methods for solving a quadratic equation. Now we will be given an equation which will be not a quadratic, but it can be reduced to a quadratic equation. So such equations are called equations reducible to quadratic. कुछ इक्वेशंस ऐसे अब हमें दिए होंगे कि वो डायरेक्ट तो क्वाड्रेटिक नहीं होंगे, लेकिन हम उसको क्वाड्रेटिक में रिड्यूस कर सकेंगे. So those equations are called equation reducible to quadratic equation, in which the first type is the equation of the type ax power 4 plus bx square plus c equal to 0. If we look at this equation, this is not directly quadratic, but if we put x square is equal to y, then it will become a quadratic in y. So this equation can be reduced to a quadratic. This will not be directly a quadratic equation, but it can be reduced to a quadratic equation. So now we will study some question of this type in exercise. This is the first type of reducible equation to quadratic. So the first type will be studied here. And in exercise number 1.1, the first question is 2x power 4 equal to 9x square minus 4. If we look at this equation, this is actually question number 2. If we look at this equation, then this is not directly a quadratic equation, but we can reduce it to a quadratic equation. As look at this, 2x power 4 equal to 9x square minus 4. This is not in standard form. So we will write this equation into descending order. सबसे पहले हम इस इक्वेशन को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, क्योंकि इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में या डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं है. सो हम सबसे पहले इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे. कैसे लिखेंगे? रीअरेंजिंग. बाय रीअरेंजिंग दिस इक्वेशन, 9x square should be shifted to left side. Here it is positive. When we shift to the left side, it will become negative. And minus 4, this is negative here, and if we shift to the right to the left hand side, then it will become positive. So this equation can be arranged in descending order as 2x power 4 minus 9x square plus 4 equal to 0. This is the form which is descending order, which is in descending order. So now we have written an equation in the descending order. Now we will reduce it. How can we reduce this equation to quadratic? Put x square is equal to y. Put x square is equal to y
in the above equation, we will get a reduced quadratic equation in y is, put here y, x square is equal to y. When x square is equal to y, then x power 4 will become y square. So 2x power 4 will become 2y square. Minus 9y plus 4 equals to 0. Now if we look at this equation, this is a quadratic in y variable y. Original variable is x, but we have changed it into a dummy variable and it becomes a quadratic equation in y. पहले हमारे पास इक्वेशन जो था वो डायरेक्ट क्वाड्रेटिक नहीं था. हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर को y के इक्वल पुट किया. तो जब x स्क्वायर को आप y के इक्वल पुट कर ले, दोनों साइड्स का स्क्वायर ले ले, ये x4 बन जाएगा, ये y स्क्वायर बन जाएगा. तो इट मीन्स कि इस इक्वेशन में हम x4 की जगह, x पावर 4 की जगह क्या पुट कर लेंगे, y स्क्वायर, और x स्क्वायर की जगह y पुट कर लेंगे. तो ये इक्वेशन हमारे पास बन जाएगा 2y स्क्वायर माइनस 9y प्लस 4, जो कि ये फॉर्म हमारे पास बन गया. अब ये क्वाड्रेटिक है. यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक नहीं था, अब यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. अब जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमने डिफरेंट 3 मेथड्स पढ़ लिए थे. एक फैक्टराइजेशन मेथड था, एक कंप्लीटिंग स्क्वायर था और एक क्वाड्रेटिक फार्मूला था. पहले एक्सरसाइज में हमने ये पढ़ लिए थे. पहले और दूसरे एक्सरसाइज में हमने ये पढ़ लिए थे. तो ये अब क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. अब 3 डिफरेंट मेथड जो हमने पढ़ लिए थे, उनमें से अब आप किसी भी मेथड को यूज करके y की वैल्यू फाइंड कर सकते हो. मीन्स कि इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग एनी वन ऑफ दीज 3 मेथड्स, दैट इज आइदर बाय फैक्टराइजेशन और बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन फार्मूला और by completing square. So this is up to you कि कौन सा मेथड आप यूज करना चाहते हैं. लेकिन सबसे आसान यहाँ पे हमारे पास फैक्टराइजेशन है. देखिए फैक्टराइजेशन में हम क्या करेंगे, फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, इससे हमारे पास आ जाएगा 8y स्क्वायर. अब माइनस 9y के हम दो ऐसे फैक्टर्स बनाएंगे जिनकी प्रोडक्ट से प्लस 8y स्क्वायर आ सकता है और सम से माइनस 9y आ सकता है. सम और डिफरेंस से माइनस 9y आ सकता है. तो हमारे पास 8y और y ये दो इसके फैक्टर्स बन जाएंगे. तो सबसे इजीली मेथड जो है हमारे पास क्या है, फैक्टराइजेशन है. हम इसको फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर रहे हैं. देखिए ये इक्वेशन है, 9 को जस्ट मैंने स्प्लिट किया, माइनस 9y को हमने माइनस 8y माइनस y के फॉर्म में लिख दिया. फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म एज इट इज लिख लिया. Now from the first two terms we can take 2y as common. इन दोनों में से हम 2y को कॉमन कर सकते हैं. कॉमन करने का मतलब है that we have to divide both the terms by 2y. अगर मैं इसको 2y से डिवाइड कर लूँ तो मेरे पास y बच जाएगा, 2y बाहर आ जाएगा और यहाँ पे y आ जाएगा. इसको अगर 2y से डिवाइड कर लूँ तो 4 आ जाएगा, तो माइनस 4. अब इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, लेकिन जब कुछ कॉमन नहीं है तो 1 तो कॉमन है, 1 से तो दोनों डिविजिबल है. सो माइनस 1 हम कॉमन लेंगे. लेकिन यहाँ पे ख्याल करें कि जब हम माइनस 1 कॉमन लेंगे तो ऑल द साइन इनसाइड द ब्रैकेट विल बी चेंज. अब ये देखें, ये माइनस y था तो ये प्लस y बन गया, ये प्लस 4 था तो माइनस 4 बन गया. ये y माइनस 4 और y माइनस 4 दोनों ब्रैकेट सेम आ गए. तो इसका मतलब ये है कि अगर आप यहाँ पे फैक्टर सही बनाएंगे तो ये दोनों ब्रैकेट सेम आएंगे. और अगर आपके ब्रैकेट सेम नहीं आ रहे तो इट मीन्स कि आपने यहाँ पे गलती की है, इन फैक्टर्स में आपने गलती की है, फैक्टर्स आपने फिर सही नहीं बनाए हैं. जब दोनों ब्रैकेट सेम है तो इसका मतलब है कि हम इसमें से एक कॉमन कर सकते हैं. अब y माइनस 4 को मैंने कॉमन किया तो यहाँ मेरे पास बच जाएगा 2y और यहाँ भी बच जाएगा माइनस 1, तो उसको दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे 2y माइनस 1. अब y माइनस 4 इंटू 2y माइनस 1 इक्वल टू 0. इसका मतलब है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स इज इक्वल टू 0. इट मीन्स कि आइदर फर्स्ट इज इक्वल टू 0 और सेकंड इज इक्वल टू 0. इफ दिस इज ट्रू देन we can write either y minus 4 equal to 0 or 2y minus 1 equal to 0.
If y minus 1 is equal to 0, then it means कि y is equal to 4, and if 2y minus 1 is equal to 0 is true, then it means कि 2y is equal to 1 or y is equal to 1 by 2. So y is equal to 4 and y is equal to 1 by 2. These are the two values of y. यहाँ पे एक बात का ख्याल रखें कि y जो था वो हमारा ओरिजिनल वेरिएबल नहीं था। अक्सर बच्चे यहाँ भी मिस्टेक कर जाते हैं कि इसको फिर सोल्यूशन सेट के अंदर लिख लेते हैं, तो ये सोल्यूशन सेट नहीं है, क्योंकि हमारा जो ओरिजिनल वेरिएबल है वो x है। हमें x की वैल्यू चाहिए। ये तो हमने अपने आसानी के लिए इक्वेशन को रिड्यूस किया क्वाड्रेटिक में, तो हमारे पास दो वैल्यूज आ गए। अब इन दोनों को बारी बारी जो हमने सपोजिशन की थी कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई हमने सपोज किया था, तो अब वो हम इसमें सपोजिशन वाली वैल्यू पुट करेंगे और वहां से हम ओरिजिनल वेरिएबल की वैल्यूज निकाल सकते हैं। सो हमने लिख लिया कि इफ y इज इक्वल टू 4, इट मीन्स कि देन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, बिकॉज एक्स स्क्वायर को हमने सपोज किया था y के इक्वल, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। अगर स्क्वायर रूट ले लूँ दोनों साइड्स का तो x इज इक्वल टू अंडर रूट 4 आ जाएगा। x इज इक्वल टू अंडर रूट 4 का मतलब है प्लस माइनस 2। y की जो सेकंड वैल्यू थी वो मैंने इधर सॉल्व की है। इफ y इज इक्वल टू 1 बाई 2, इट मीन्स कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई 2, देन x इज इक्वल टू 1 बाई 2 अंडर स्क्वायर रूट, दोनों साइड्स के स्क्वायर रूट ले लें। अब 1 का स्क्वायर रूट तो 1 आ जाएगा और 2 जो है वो एज इट इज स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा। सो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 ओवर अंडर रूट 2 आ जाएगा। अब x की दो वैल्यूज ये आ गए और x की दो वैल्यूज ये आ गए, ये टोटल हमारे पास 4 वैल्यूज बन गए। इन चारों को हम सोल्यूशन सेट के अंदर लिखेंगे तो सोल्यूशन सेट हमारे पास बन जाएगा प्लस माइनस 2 कॉमा प्लस माइनस 1 ओवर अंडर रूट 2। ये हमारा सोल्यूशन हो जाएगा। अब इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी मेथड पे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 5x पावर 1 बाई 2 इक्वल टू 7x पावर 1 बाई 4 माइनस 2। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। पहला क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया, वो आपने खुद करना है। पहली की सेकंड जो आपने किया उसकी तरह है। इसी टाइप के 5 क्वेश्चन है। पहले इसी टाइप के हमारे पास जो फर्स्ट 5 क्वेश्चन है वो है, तो एक मैंने जो है ना छोड़ दिया आपके लिए, दूसरा और तीसरा ये है हमारे पास। अब यहाँ देखें x पावर 1 ओवर 4 x पावर 1 ओवर 2, इसमें क्या होगा कि जो x पावर 1 ओवर 4 है ये हाफ है किस चीज़ का, x पावर 1 बाई 2 का। तो जो हाफ होता है उसको हम सपोज करते हैं, लेकिन उसी तरह पिछले क्वेश्चन की तरह पहले इसको अरेंज कर ले, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख ले। सो रीअरेंजिंग 5x पावर 1 बाई 2 माइनस 7x पावर 1 ओवर 4 प्लस 2 इक्वल टू 0। ये यहाँ पे पॉजिटिव था, जब शिफ्ट करेंगे लेफ्ट साइड पे तो नेगेटिव हो जाएगा। ये माइनस 2 राइट साइड पे पॉजिटिव था, सॉरी नेगेटिव था, जब लेफ्ट साइड पे ले जाऊंगा तो इसको ये पॉजिटिव हो जाएगा, राइट साइड पे 0 बच जाएगा। अब ये हमारे पास डिसेंडिंग ऑर्डर में है। डिसेंडिंग ऑर्डर में आ गए तो x पावर 1 ओवर 4 को मैं सपोज कर रहा हूँ y के इक्वल। अब इसका स्क्वायर ले लें, x पावर 1 बाई 4 का होल स्क्वायर और ये y का होल स्क्वायर, ये 2 और 4 की कैंसिलेशन हो सकती है, तो x पावर 1 बाई 2 यहाँ पे बच जाएगा और ये y स्क्वायर बन जाएगा। तो x पावर 1 बाई 2 की जगह हम y स्क्वायर पुट कर सकते हैं और x पावर 1 ओवर 4 की जगह हम y पुट कर सकते हैं। So this equation will becomes, and you put x power 1 over 4 is equal to y, then x power 1 over 4 whole square is equal to y square in the above equation. So this becomes 5y square minus 7y plus 2 equals to 0. तो ये हमारे पास अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। ओरिजिनल जो इक्वेशन हमें गिवन था ये क्वाड्रेटिक नहीं था, ठीक है, लेकिन हमने इसको रिड्यूस किया क्वाड्रेटिक में। पहले हमारे पास वेरिएबल x था, अब हमने वेरिएबल y इंट्रोड्यूस किया इसमें, तो हम इसको y के लिए सॉल्व करेंगे। दो वैल्यूज हमारे पास y के आ जाएंगे, फिर उसको बारी बारी इस इक्वेशन में पुट कर लेंगे और x के हमारे पास उससे वैल्यूज आ जाएंगे। सो अब इसको भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो। 3 डिफरेंट मेथड्स हैं, जो मेथड आपको इजी लगता है उस मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हो।
लेकिन सबसे आसान यहाँ पे मैंने आपको बताया कि फैक्टराइजेशन है। कौन कौन से 3 मेथड है? फैक्टराइजेशन है, कंप्लीटिंग स्क्वायर है और क्वाड्रेटिक फार्मूला है। लेकिन सबसे आसान हमारे पास क्या है यहाँ पे? फैक्टराइजेशन है। फैक्टराइजेशन कैसे करूँगा? देखें, 5 2s are 10 प्लस 10y स्क्वायर आ रहा है इनके प्रोडक्ट से, तो -7y के दो ऐसे फैक्टर चूज कर ले जिनकी प्रोडक्ट से प्लस 10y स्क्वायर आ जाए और सम और डिफरेंस से -7y आ जाए, तो वो 5 और 2 होंगे। 5 2s are 10 हो जाएंगे। 5 और 2 को अगर मैं ऐड कर लूँ तो -7 बन सकता है, यानी -5 और -2 को अगर ऐड कर ले तो -7 बन सकता है, और अगर उन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो +10 बन सकता है। सो दिस इक्वेशन फर्दर कैन बी रिटन एज 5y स्क्वायर -7y + 2। ये फर्स्ट और लास्ट टर्म एज इट इज लिख लिया। देखिए इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, जस्ट मैंने इस -7 को स्प्लिट किया -5y और -2y के फॉर्म में। So -5y -2y. Now from the first two term we can take 5y as common. Again कॉमन करने का मतलब है कि we have to divide both the terms by 5y. अगर मैं इसको 5y से डिवाइड कर लूँ तो मेरे पास यहाँ पे y बच जाएगा, तो 5y जो है वो कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे y बच जाएगा, और ये 5y से डिवाइड कर ले तो -1। लास्ट टू टर्म्स में से -2 को कॉमन कर ले तो ये फिर ये y हो जाएगा और ये प्लस साइन माइनस में चेंज हो जाएगा और -1 = 0। नाउ अगेन ये दोनों ब्रैकेट्स हमारे पास सेम आ गए। दोबारा मैं बता दूं कि अगर ये दोनों ब्रैकेट सेम नहीं आ रहे तो इट मीन्स कि आपने यहाँ पे फैक्टर्स जो बनाए हैं वो गलत बनाए हुए हैं। ये इसकी इंडिकेशन होगी कि अगर आपके पास ये दोनों ब्रैकेट सेम नहीं आ रहे तो मोस्ट प्रोबेबली ये होता है कि यहाँ पे जो आपने फैक्टर्स बनाए हैं वो गलत बनाए हुए हैं, तो उसको आपने दोबारा रिव्यू करना है, उसको देखना है कि फैक्टर्स आप सही तरह इसको सेलेक्ट कर लें। सो y -1 इसमें से कॉमन कर लूँगा, यहाँ हमारे पास 5y बच जाएगा और यहाँ पे -2 बच जाएगा। सो y -1 × 5y -2 = 0। ये हमारे पास क्या आ गया? ये फाइनल इक्वेशन आ गया इस इक्वेशन से। अब अगेन प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म इज इक्वल टू 0, इट मीन्स आइदर फर्स्ट टर्म इज 0 और सेकंड टर्म इज 0, सो आइदर y -1 = 0 और 5y -2 = 0। if this is true then y is equal to 1, and if this is true then 5y is equal to +2 हो जाएगा, उधर शिफ्ट कर ले और 5 से डिवीजन कर ले तो y is equal to 2/5। तो ये दो वैल्यूज हमारे पास आ गए y के, y is equal to 2/5 and y is equal to 1। ये दो वैल्यूज हैं हमारे पास जिसको हम बारी बारी अब सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये हमारे पास ओरिजिनल इक्वेशन में वेरिएबल y नहीं था, उसमें वेरिएबल x है। ये वैल्यूज हमने जो नया वेरिएबल हमने इंट्रोड्यूस किया उसकी वैल्यूज आ गए, तो ये सोल्यूशन सेट में नहीं लिखेंगे बल्कि इसको आगे हम सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? देखें, इफ y is equal to 1 तो y को हमने क्या सपोज किया था? पिछले स्लाइड में जाके देख लें कि इसको हमने क्या किया था, x पावर 1/4 को हमने y के इक्वल पुट किया था। तो इफ y is equal to 1 देन इट मीन्स कि x पावर 1/4 is equal to 1। अब यहाँ पे ज़रा ख्याल करें, x पावर 1/4 is equal to 1, मुझे x की वैल्यू चाहिए, ये पावर में जो 1/4 है ये मैंने ख़त्म करना है, तो अब मुझे ये पता होना चाहिए कि ये कैसे ख़त्म होगा। ये x पावर 1/4 को अगर मैं, यानी इस इक्वेशन को अगर मैं दोनों साइड्स का 4th पावर ले लूँ, जैसे हमारे पास हम कहते हैं कि स्क्वेयरिंग बोथ साइड या क्यूबिंग बोथ साइड, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? टेकिंग 4th पावर ऑफ बोथ साइड्स, दोनों साइड्स का 4th पावर लेंगे, तो क्या आ जाएगा? x पावर 1/4 होल पावर 4 और 1 पावर 1 होल पावर 4 आ जाएगा। ये 4 कैंसिल होगा तो x पावर 1 यानी x बच जाएगा, और 1 को जितने टाइम्स भी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा? 1 आएगा। सो यहाँ पे x1 को हम 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट हमारे पास 1 हो जाएगा, x is equal to 1 हो गया। जो दूसरी वैल्यू थी हमारे पास y की, इफ y is equal to 2/5, अब इसको सॉल्व कर लो। y को मैंने क्या सपोज किया था? x पावर 1/4 सपोज किया था, तो इट मीन्स के x पावर 1/4 is equal to 2/5। अगेन x पावर 1/4 से ये 1/4 खत्म करना है, हमें x चाहिए,
तो x के लिए हम क्या करेंगे, टेकिंग अगेन फोर्थ पावर ऑफ बोथ साइड्स, तो ये आ जाएगा x पावर 1/4 होल पावर 4 और इक्वल टू 2/5 रेज टू द पावर 4। ये 4 कैंसिल होगा, x बच जाएगा, और ये 2/5 रेज टू द पावर 4, तो 2 का पावर 4 ले लें, मीन्स कि 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 16 बन जाएगा, और 5 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 625 बन जाएगा। यानी 5 5 जार 25, 25 5 जार 125 और 125 5 जार 625। तो x के हमारे पास ये दो वैल्यूज आ गए, x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 16/625। अब इन दोनों वैल्यूज को क्या करें, सोल्यूशन सेट के अंदर लिख लें। सो सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 1 एंड 16/625, ये हमारे पास इसका सोल्यूशन होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम इसी तरह हम देखते हैं, तो इसी मेथड का होगा। ये देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5, 3x पावर -2 + 5 इक्वल टू 8 इंटू x पावर -1। ये भी अरेंज कर ले पहले, क्योंकि डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं है या स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए ये जो 8x पावर -1 है इसको लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करूंगा तो -8 आ जाएगा। सो रीअरेंजिंग, 3x पावर -2 - 8x पावर -1 + 5 इक्वल टू 0। अब इसी टाइप का क्वेश्चन है, ये x पावर -1 और x पावर -2, आप इसमें डिसाइड कर ले कि कौन सा हाफ है। x पावर -1 इसका हाफ है x पावर -2 का, तो हम इसको सपोज कर लेंगे पुट x पावर -1 इज इक्वल टू y। अब इन दोनों साइड्स का स्क्वायर ले ले तो ये x पावर -2 बन जाएगा और ये y स्क्वायर बन जाएगा, तो इसमें ये पुट कर ले। सो 3y स्क्वायर - 8y + 5, ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। यानी इस इक्वेशन में जो गिवन इक्वेशन था, इसमें अगर x पावर -1 की जगह y पुट किया जाए और x पावर -2 की जगह y स्क्वायर पुट किया जाए, तो हमारे पास ये इक्वेशन इस तरह बन जाएगा, 3y स्क्वायर - 8y + 5 इक्वल टू 0। अब अगेन हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, पहले क्वाड्रेटिक नहीं था, अब क्वाड्रेटिक बन गया। तो क्वाड्रेटिक के लिए मैंने दोबारा बता दूं कि आपके पास 3 मेथड है, कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने फैक्टराइजेशन यूज़ की क्योंकि आसान है। 5 3 = 15, -8 के दो फैक्टर्स 5 और 8 बना सकता हूँ, जिनकी प्रोडक्ट से 15 आएगा और सम डिफरेंस से -8 आ जाएगा। सो देखें, 3y स्क्वायर - 8y + 5 इक्वल टू 0। -8 को स्प्लिट किया, -5y - 3y के फॉर्म में लिख लिया। फर्स्ट टू टर्म में से y कॉमन किया तो 3y - 5 बच गया। लास्ट टू टर्म में से -1 कॉमन किया तो ये +3y और -5 बन गया। दोनों ब्रैकेट सेम आ गए, एक ब्रैकेट इसमें से कॉमन कर ले, 3y - 5 कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पे y - 1 बच जाएगा। A product of two term is equal to 0. It means कि first term is 0 or second term is 0. So 3y - 5 is equal to 0 or y - 1 is equal to 0. यहाँ मैंने y - 1 को पहले लिख लिया, 3y - 5 को बाद में लिख लिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। So y - 1 is equal to 0 mean कि y is equal to 1 and 3y - 5 is equal to 0 mean कि 3y is equal to 5 or y is equal to 5/3। ये हमारे पास y के दो वैल्यूज आ गए, लेकिन ये डमी वेरिएबल के वैल्यूज है। अब हमने नया वेरिएबल जो इंट्रोड्यूस किया था, इसकी ये वैल्यूज है, ओरिजिनल वेरिएबल को हमने फाइंड करना है। कैसे फाइंड करूंगा कि y इज इक्वल टू 1, अगर y की वैल्यू 1 है तो y को मैंने क्या सपोज किया था, x पावर -1 इज इक्वल टू y सपोज किया था, तो इट मीन्स कि x पावर -1 इज इक्वल टू 1। सो ये हमारे पास आ जाएगा कि इफ y इज इक्वल टू 1 इट मीन्स कि x पावर -1 इज इक्वल टू 1। x पावर -1 का क्या मतलब है, इसका मतलब है कि 1/x इज इक्वल टू 1, क्योंकि जब पावर को आप पॉजिटिव बनाना चाहते हैं तो क्या होगा, ये नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो 1/x पावर 1 हो जाएगा और इज इक्वल टू 1। क्रॉस में मल्टीप्लाई कर ले तो x इज इक्वल टू 1 हमारे पास एक वैल्यू आ जाएगी। अब दूसरी y की जो वैल्यू थी उसके हमारे पास x की दूसरी वैल्यू आ जाएगी। इफ y इज इक्वल टू 5/2, तो y हमने क्या सपोज किया था, x पावर -1 सपोज किया था, तो देन x पावर -1 इज इक्वल टू 5/2। अब x पावर -1 को दोबारा 1/x के फॉर्म में लिख ले, ये 1/x आ गया,
क्रॉस में मल्टीप्लाई कर ले, 5x इज इक्वल टू 2 हो जाएगा या x इज इक्वल टू 2/5 हो जाएगा। या इन अदर वर्ड्स अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते तो क्या करें, दोनों साइड्स को इन्वर्ट कर लें। जब इन्वर्ट कर लूँगा तो ये x/1 बन जाएगा और ये 2/5 बन जाएगा। तो x की हमारे पास अगेन दो वैल्यूज़ आ गए, एक 2/5 है और दूसरी वैल्यू 1 है। अब दोनों वैल्यूज़ को सोल्यूशन सेट के अंदर लिख लूँगा, 1 एंड 2/5। ये रेड से जो मेंशन किया था ये y इज इक्वल टू 1 से आया हुआ है और ग्रीन से जो मेंशन किया ये y इज इक्वल टू 5/2 से आया हुआ है। तो ये दो वैल्यूज हमारे पास इसके सोल्यूशन बन जाएंगे। सो दिस इज द सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। इन 3 क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए। मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक इस टाइप के क्वेश्चन है कि आपने हाफ वाले वेरिएबल को सपोज करना है, x पावर की जो हाफ पावर होगी वो सपोज कर ले y के, और जो डबल पावर है वो y² बन जाएगा। उससे फिर आप जो है वो ओरिजिनल इक्वेशन में वैल्यूज पुट करेंगे, तो जो नया वेरिएबल आप इंट्रोड्यूस करते हैं उसमें आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद आपके पास दो वैल्यूज आ जाएंगे उस नए वेरिएबल के, उसको फिर ओरिजिनल सपोजिशन जो आपने की है उसमें पुट कर ले, आपके पास ओरिजिनल वेरिएबल के वैल्यूज आ जाएंगे। और जो ओरिजिनल वेरिएबल की वैल्यूज आ जाए उसको फिर आप सोल्यूशन सेट के अंदर लिख लें, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये इसका सोल्यूशन होगा। सो आज का लेक्चर इस पे हम ख़त्म कर देते हैं। कल से इंशाल्लाह फिर हम नया टाइप जो है वो पढ़ेंगे, नए टाइप के जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 से ऑनवर्ड वो पढ़ेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू।